Stresses are those stresses which are changing their magnitude with respect to time. Fluctuating stresses are categorized as a repeated stress in which sigma minimum is 0. For the repeated stress, the sigma minimum is 0. So when sigma minimum is 0, the mean stress and the amplitude stress both are equal and equal to sigma max by 2. And in this case, sigma m and sigma a both exist with different value, but here sigma m and sigma a both exist with the same value, with the same magnitude. In the case of reverse bending, we have sigma m equal to 0, only sigma a is existing. So our design criteria in the case of fluctuating stress, both parameter. In case of repeated stress, both parameter. In case of reverse bending stress, only one parameter. So to analyze the reverse bending stress is easier as compared to fluctuating and repeated, because number of the parameters are less in this case. So that's why the specimen made, we have made is such type of specimen in which reverse bending situation is there. So we have not to worry about the mean stress. We have to worry only about the sigma a. So that's why we have made a specimen for the fatigue testing machine. So this was example. This is the specimen in which the standard test pen sizes are mentioned. It is applied by bending movement MB and then fitted with the rotating machine. So machine is here, the specimen is here, weights are hanging here, and revolution counter are counted here. So there is a table formed by so many experiments. In the first column, we have noted what we have noted in the first column, at which stress the first fatigue crack appears. The fatigue crack appears. So we have applied some weight. Due to these weights, there is a bending moment, and due to that bending moment, there will be bending stress. And for reverse bending stress, the maximum value of the bending stress is at the top fiber. Suppose this is the cross section of the shaft. So maximum value of the bending stress lies at the top fiber or the bottom fiber. So this is the bending situations are somewhat like this. So at the top fiber, there is a maximum stress, and bottom fiber, there is a maximum stress. Both are opposite in nature. Okay. So the design criteria is this sigma max, which is maximum at the top surface. This is the design criteria in case of static loading. In case of static loading, this is the design criteria. यही हुआ करता था, हम कोई भी चीज बेंडिंग में थी, मान लो रोटेट नहीं हो रही थी, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस नहीं थे, केवल स्टैटिक स्ट्रेस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस केस में हम क्या करते थे, हम टॉप फाइबर का जो मैक्सिमम स्ट्रेस था या बॉटम फाइबर का जो मैक्सिमम स्ट्रेस था, उसको हम इक्विवेलेंट कर देते थे किसके साथ, डिजाइन स्ट्रेस के साथ, और SYT डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम कंपेयर करते थे जब हम स्टैटिक लोड को डील करते थे. ठीक है. नाउ द स्पेसिमेन इज रोटेटिंग, that's why it is not under the static stresses, it is under the fluctuating stresses. And in case of fluctuating stresses, it is a situation of the reverse bending. And for reverse bending, we know sigma m equal to 0, and sigma amplitude, stress amplitude is given by sigma max. तो फॉर्मूले से आता है ना, सिग्मा m is sigma max plus sigma min divided by 2. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं रिवर्स बेंडिंग के केस में, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है. और सिग्मा a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मैक्स, है ना, माइनस सिग्मा मिनिमम, एंड सिग्मा मिनिमम इज माइनस सिग्मा मैक्स इन केस ऑफ रिवर्स बेंडिंग. रिवर्स बेंडिंग की पहचान क्या है, सिग्मा मैक्स इज माइनस ऑफ सिग्मा min, means the numeric maximum tensile value equal to maximum compressive value in magnitude. So sigma max is minus sigma min. When I write minus sigma max in place of sigma min by 2, so minus minus plus, so it is 2 times sigma max divided by 2, so it is sigma max.
तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो सिग्मा मैक्स के इक्वल हो जाती है फ्लक्चुएटिंग केस में, और स्टैटिक केस में भी देखो हम सिग्मा मैक्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। और फ्लक्चुएटिंग केस में स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ, यदि रिवर्स बेंडिंग का केस है तब भी जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो डिजाइन क्राइटेरिया हुआ करता है फ्लक्चुएटिंग केस में, तो जो डिजाइन क्राइटेरिया हुआ करता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स। तो यदि मैं कॉलम में नोट करता हूँ सिग्मा ए, इसका मतलब मैं क्या नोट कर रहा हूँ, सिग्मा मैक्स ही नोट कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज सिग्मा ए एंड सिग्मा मैक्स आर इक्वल इन केस ऑफ रिवर्स बेंडिंग। So first column I am taking the stresses, in the second column I am taking the revolution counter n, that is the number of cycles. So I have first record, second record, third record, fourth record. Like this I have done so many experimentation, and this experimentation I have plotted. So I got a SN curve or SN diagram, which is shown in the next slide. This is the SN curve or the SN diagram. So on the y-axis you have taken sigma A, है ना, और you have taken sigma max, दोनों इक्वल है तो उसको हम सिग्मा A बोल सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो सिग्मा A we are plotting. So when sigma A value is this much, the revolution counter are according to this point. When sigma A is less, then revolution counter according to this point. So number of the cycles are more when the sigma A is less. So sigma A, if sigma A is more, then component, mechanical component will survive for less number of cycles. Important. If stress amplitude is more, है ना, ये तो ग्राफ से हमको आउटपुट मिल रहा है ना, ये तो ग्राफ की रीडिंग है। When the stress amplitude is more, the number of cycles are less. When the stress amplitude is less, number of cycles are more. And there is a special point at 10 to the power 6 cycles, and that sigma A, that sigma A point at this 10 to the power 6 million cycles, that point is a endurance limit. So endurance limit is that stress amplitude. Endurance limit भी क्या है, एक stress amplitude ही है. It is also a sigma A, है ना, but it is that sigma A at which the life of the component is infinite. The life of component is infinite, है ना, either infinite or it is usually 10 to the power 6 million cycles, है ना। अब हम practical way में 10 to the power 6 million cycles means it is approximately equal to infinite number of cycles for the calculation purpose. So this is the SN diagram, है ना। ये सब मैंने recap किया है जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, है ना। We have done this thing all. जरा सा क्लियर कर दूं इसकी। तो अब आते हैं सीधे हम थोड़ा सा डिजाइन क्राइटेरिया पर, है ना। तो अब यहाँ पर ये कौन सी, ये डायग्राम किससे हमको मिला है, ये डायग्राम हमको मिला है रिवर्स बेंडिंग से। ये भी रिपीटेड से नहीं मिला है, फ्लक्चुएटिंग से नहीं मिला है, किससे मिला है, रिवर्स बेंडिंग से ये डायग्राम मिला है, ठीक है। और रिवर्स बेंडिंग से ये जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं, ये रिजल्ट्स हमें किसके मिले हैं, स्पेसिमेन के रिजल्ट हैं। ये इसके रिजल्ट है स्पेसिमेन, जो हमने टेस्ट स्पेसिमेन बनाया था उसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, स्पेसिमेन का एक पर्टिकुलर डायमीटर है दैट इज 7.5 mm, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस स्पेसिमेन के लिए आपको कोई इंड्योरेंस लिमिट मिली है, सपोज वो इंड्योरेंस लिमिट 70 मेगापास्कल है फॉर दिस स्पेसिमेन। अब मान लीजिए मेरा जो एक्चुअल कंपोनेंट है, जब मैं डिजाइन करने बैठूंगा तो मेरा जो एक्चुअल कंपोनेंट होगा वो हमेशा 7.5 मिलीमीटर का होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। मेरा कंपोनेंट तो किसी भी डायमीटर का हो सकता है, इट मे बी मोर देन 7.5 mm और इट मे बी लेस देन 7.5 mm। तो ये देखा गया है कि व्हेन द diameter of the specimen changes, when the diameter of the specimen changes, then this endurance limit also changes, ठीक है। देखो दो प्रॉपर्टी अभी आप देख रहे हैं, एक तो SUT जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या SYT दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ, और एक प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं SE, ठीक है। SYT जो प्रॉपर्टी है, यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, वो 7.5 मिलीमीटर डायमीटर के स्पेसिमेन के लिए या 7.5 से ज्यादा 10 मिलीमीटर डायमीटर के स्पेसिमेन के लिए सेम वैल्यू रखती है, SYT चेंज नहीं होती
एस वाई टी इज फिक्स्ड। आप उस मटेरियल का चाहे 7.5 मिलीमीटर का शाफ्ट बना लें, चाहे 10 मिलीमीटर का शाफ्ट बना लें, एस वाई टी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंड्योरेंस लिमिट प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ है कि एज द डायमीटर इट इंक्रीजेस, endurance limit is not a constant property. It also depends on the geometrical shape of the component. So geometrical shape of the component से मेरा मतलब है, अभी वो सर्कुलर सेक्शन का है ना, उसका डायमीटर चेंज होगा तो endurance limit चेंज हो जाएगी। उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर की जगह ट्रायंगुलर कर देंगे तो endurance limit चेंज हो जाएगी, पेंटागोनल कर देंगे तो endurance limit चेंज हो जाएगी। लेकिन यील्ड पॉइंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि हम क्रॉस सेक्शन बदल दें तो। This is the basic difference between the yield strength and the endurance limit. ये अक्सर पूछते हैं दोनों प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। तो endurance limit property is not a constant property. It depends on the geometrical shape of the component, size and shape, both things. है ना, size of the component also and shape of the component also. तो ये मैंने कुछ आपको endurance limit बताया। अब इसमें मुझे फिगर में थोड़ा और आपको कुछ बताना है, मैं फिर से इसको जरा क्लियर करता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए जब मैं डिजाइन करने बैठूंगा तो मेरे पास ये जो एंडोरेंस लिमिट है ये किसकी है, ये तो स्पेसिमेन की है ना। तो स्पेसिमेन की एंडोरेंस लिमिट को मैं बोलूंगा एस सी डैश, ठीक है। और जिस कंपोनेंट को मैं डिजाइन कर रहा हूँ उसकी एंडोरेंस लिमिट को आई विल से इट इज एस सी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो जो डाटा बुक है उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे वैल्यूज मिलेंगी वो मुझे किसकी मिलेंगी, स्पेसिमेन की वैल्यूज मिलेंगी, एससी डैश की वैल्यूज मिलेंगी। तो जनरली ये ऑब्जर्व होता है ना, फॉर द रफ एस्टिमेशन कि एससी डैश की जो वैल्यू होती है वो लगभग स्टील के केस में, मेटल टू मेटल भी डिफर करती है। यदि हम स्टील पे वर्किंग कर रहे हैं, बिकॉज स्टील इज द मोस्ट यूज्ड मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज, सो फॉर स्टील एससी डैश इज जनरली 50% of the SUT, ठीक है। तो यदि किसी मटेरियल की SUT मान लीजिए 200 मेगापास्कल है तो उस मटेरियल की एंडोरेंस लिमिट स्पेसिमेन के लिए अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस हम कितनी ले लेंगे, 0.5 SUT, यानी कि 200 का हाफ कितना हो जाएगा, 100 मेगापास्कल हो जाएगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है और ये एम्पेरिकल रिलेशन है। इस एम्पेरिकल रिलेशन को व्हेन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि स्पेसिमेन की जो एंडोरेंस लिमिट होगी वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का 50% होगी इफ दैट कंपोनेंट इज मेड ऑफ स्टील, है ना। यदि वो स्टील के अलावा एल्युमिनियम वगैरह का होगा तो उस केस में जो एंडोरेंस लिमिट है वो फर्दर और डाउन होती है, 50% की जगह 40% लेके आप काम को आगे कर सकते हैं, हाँ। बट जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी स्टील से रिलेटेड ही आएंगे। चलिए, तो ये तो हुई ये दो बातें, एक तो एससी डैश होता है और एक एससी होता है। हेलो, हाँ बोलिए सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, चलिए मैं दोबारा से कर देता हूँ ना। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि ये जो हमने ग्राफ किया है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने ग्राफ बनाया है ना। ये ग्राफ हमको कैसे मिला है, एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो कि हमें फटीग टेस्टिंग मशीन से मिला है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ एक पर्टिकुलर टेस्ट स्पेसिमेन के लिए है, पर्टिकुलर टेस्ट स्पेसिमेन जिसमें कि उसका डायमीटर कितना है, 7.5 मिलीमीटर उसका डायमीटर, ठीक है। तो 7.5 मिलीमीटर के लिए ये जो एंडोरेंस लिमिट है इसको हम जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो इसको हम अब एससी डैश बोलेंगे। एससी डैश का मतलब इट इज द एंडोरेंस लिमिट फॉर द स्पेसिमेन, है ना, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। और एक नया पैरामीटर यूज करेंगे एससी, जो कि एक सेकंड होल्ड करना। हाँ सर, नमस्कार। ठीक है सर, मैं अभी क्लास है, बस 1 घंटे में फ्री होकर मिल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने एक मुझे वो टीसीएस का कुछ भेजा है, एक इनवॉइस आपने। जी जी जी, तो मैं आज ही मिल लेता हूँ उनसे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो
मैं बात कर रहा था, दो वर्ड हैं, एक एससी और एक एससी डैश, इनके बीच में क्या रिलेशन होती है उसको भी हम जरा सा समझेंगे, है ना। एससी डैश स्पेसिमेन की एंडोरेंस लिमिट होगी और एससी जो है वो एक्चुअल कंपोनेंट की एंडोरेंस लिमिट होगी, है ना। तो एक्चुअल कंपोनेंट की एंडोरेंस लिमिट और स्पेसिमेन की एंडोरेंस लिमिट में क्या रिलेशन होते हैं वो अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि एससी डैश जो है वो रफली 0.5 एसयूटी लेकर के आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ है एक्सपेरिमेंटेशन से कि एसिड एस की जो वैल्यू मिलती है वो एसयूटी के लगभग हाफ के बराबर होती है ना। तो फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर्पसेस, रियल लाइफ कैलकुलेशन पर्पसेस, वी कैन टेक एसिड एस इक्वल टू 0.5 एसयूटी and एसिड एस इज द endurance limit of the test specimen, not the component. It is the endurance limit of the specimen. ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि एसयूटी और एंडोरेंस लिमिट दोनों ही डिफरेंट प्रॉपर्टी है। एसयूटी कांस्टेंट रहती है, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती है ना। शाफ्ट का साइज 10 मिलीमीटर हो, 20 मिलीमीटर हो, एसयूटी उसकी सेम रहेगी, है ना। कोई शाफ्ट मान लीजिए स्टील का बना हुआ है, उसकी एसयूटी मान लीजिए 300 मेगापास्कल है सपोज, है ना। अब शाफ्ट का डायमीटर कुछ भी हो, 50 मिलीमीटर हो, 100 मिलीमीटर हो, 10 मिलीमीटर, उसकी एसयूटी चेंज नहीं होगी, है ना। तो साइज पे डिपेंड नहीं करती है एसयूटी। बट एंडोरेंस लिमिट जो है वो साइज पे डिपेंड करती है ना। साइज पे भी डिपेंड करती है, शेप पे भी डिपेंड करती है, और भी कई चीजों पे डिपेंड करती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये सरफेस रफनेस पे भी डिपेंड करती है, सरफेस रफनेस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, तो वो भी हम आगे समझेंगे। अभी मैंने इतना ही बताया। अब मैं आप आगे वाली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, दो तरह की फटीग है, एक तो है लो साइकिल फटीग और एक है हाई साइकिल फटीग, है ना। अब इनमें क्या डिफरेंस है तो आप देखिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो एरिया है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रेस वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है ना, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ 3 का मतलब क्या होता है, 1000 साइकिल्स। ये लॉग ग्राफ होता है ना, इट इज ए लॉग लॉग ग्राफ। तो 3 का मतलब कितना है, 1000 साइकिल्स। 2 का मतलब क्या है, 100 साइकिल्स। 1 का मतलब क्या है, 10 साइकिल्स, एंड सो ऑन। तो ये देखा गया है कि शुरू में 1000 साइकिल तक, शुरू में 1000 साइकिल तक ये वैल्यू थोड़ा सा डाउन होती है इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप के अकॉर्डिंग, है ना। यदि आप स्लोप की बात करेंगे तो अभी इसका स्लोप तो जो है ये दिस मच ऑफ डिग्री, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस इज दिस मच ऑफ डिग्री। दोनों के स्लोप में अंतर है ना, इस लाइन के स्लोप में और इस लाइन के स्लोप में डिफरेंस है। तो 1000 साइकिल्स तक हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और 1000 साइकिल्स के बाद में 10 टू द पावर 6 मिलियन साइकिल्स तक हमको एक और स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बेसिकली एक तरह से ये एसएन डायग्राम ही है। इट इज आल्सो ए एसएन डायग्राम। तो इससे पहले जो हमने एसएन डायग्राम आपको दिखाया तो उसमें हमने ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाया था, है ना। ये जो लो साइकिल फटीग वाला जो पोर्शन है, मतलब 1000 साइकिल से पहले वाला जो पोर्शन है ना, द पोर्शन बिफोर 1000 साइकिल्स इट इज लो साइकिल फटीग पोर्शन, एंड पोर्शन आफ्टर 1000 साइकिल्स इट इज हाई साइकिल फटीग पोर्शन। तो अभी इससे पहले जो डायग्राम था, इस डायग्राम में देख रहे हैं आप 3 से स्टार्ट हुआ है, तो 3 का मतलब क्या है, 1000 साइकिल्स। तो 1000 साइकिल से पहले का जो पोर्शन है लो साइकिल फटीग, दैट वी हैव नॉट शोन इन दिस डायग्राम, बट इन दिस डायग्राम both the low cycle and the high cycle fatigue are shown, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में रेजिस्टेंस धीरे धीरे डाउन होता है, लेकिन बाद में एंडोरेंस लिमिट तेजी से डाउन होती है। तो 1000 साइकिल के बाद में जो फटीग लिमिट है, जो फटीग स्ट्रेंथ है, वो तेजी से डाउन होती है ना, या सिग्मा ए कह सकते हैं आप, है ना। जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है वो तेजी से डाउन होता है, और यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा सा धीरे धीरे डाउन होता है ना, बिकॉज ये slowly decreasing, that's why it is known as low cycle fatigue. It is greatly decreasing, that's why it is known as high cycle fatigue, ठीक है। तो लो साइकिल फटीग में बिकॉज इट इज स्लोली डिक्रीजिंग, तो हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन होता है वो ये रहता है कि हम जो स्टैटिक लोडिंग के कंसेप्ट हैं, जो हमारे स्टैटिक लोडिंग के कंसेप्ट हैं अब तक जो हमने पढ़े हैं, है ना, जो भी हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर्स वगैरह पढ़ा है,
तो उन कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं विथ सम हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, विथ सम हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो ये गाइडलाइंस हैं कि यदि आपकी प्रॉब्लम, आपकी डिजाइन प्रॉब्लम लो साइकिल फटीग के अंदर है ना, तो आपको अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग लोडिंग के उसको अज्यूम करके, कंसेप्ट को अज्यूम करके उसको डिजाइन करिए, बस उसमें हल्का सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। आपको फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बट if it is a case of high cycle fatigue, then it has to be designed as per the concept of the fluctuating stresses. In that case, there are two design parameters, one is sigma A and one is sigma N. और इसके लिए फिर हम बहुत सारी क्राइटेरिया यूज करेंगे, कभी एंड्योरेंस लिमिट क्राइटेरिया यूज करेंगे, कभी एसएन डायग्राम यूज करेंगे, कभी गुडमैन क्राइटेरिया यूज करेंगे, कभी सोडरबर्ग लाइन यूज करेंगे। सो मेनी क्राइटेरियाज आर देयर फॉर द डीलिंग इन द केस ऑफ हाई साइकिल फटीग। ठीक है, तो ये डायग्राम भी क्लियर हुआ, और ये भी लॉग पेपर पर ही ग्राफ है। चलिए अब आते हैं जरा सा, एक और वर्ड है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ना, डिनोटेड बाय केएफ। इट इज द रेशियो ऑफ द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द नॉच फ्री स्पेसिमेन, है ना। मान लीजिए इसमें एक स्पेसिमेन है, इसके अंदर मान लो मैंने कोई नॉच कर दिया, इट इज वी नॉच, ठीक है। और एक ऐसा स्पेसिमेन है जिसके अंदर कोई भी नॉच नहीं है ना, विदाउट नॉच, इट इज विदाउट नॉच। This is the component without notch and this is the component with notch. तो बताइए एंडोरेंस लिमिट किसकी ज्यादा कम होगी, है ना। तो एंडोरेंस लिमिट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी मटेरियल में नॉच है ना, तो उसकी एंडोरेंस लिमिट रिड्यूस हो जाती है, तो उसकी एंडोरेंस लिमिट कम हो जाती है, वो कम स्ट्रेस पे ही फेल हो जाता है, वो कम स्ट्रेस पे ही फेल हो जाता है यदि किसी मटेरियल के अंदर नॉच है। और एज कंपेयर टू विदाउट नॉच स्पेसिमेन वो कम, उसकी एंड्योरेंस लिमिट कम होगी। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमने क्या लिया है, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द नॉच फ्री, मतलब विदाउट नॉच, है ना। तो ये न्यूमरेटर इज मोर, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द नॉच्ड स्पेसिमेन, द डिनोमिनेटर इज लेस, डिनोमिनेटर इज लेस। सो केएफ की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलने वाली है, आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगी वैल्यू। तो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, है ना। अभी देखो हमने एक पहले भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़ा है जिसका के नाम है केटी, है ना। केटी हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, and KF is a fatigue stress concentration factor। दोनों ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ही हैं, दोनों में फर्क क्या है इसको समझने की जरूरत है ना। केटी की डेफिनेशन क्या थी, केटी का फॉर्मूला हमने बनाया था सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय सिग्मा जीरो, यही बनाया था, याद आ रहा होगा। सिग्मा जीरो क्या था, इट इज द स्ट्रेस कैलकुलेटेड बाय द एलिमेंट्री इक्वेशंस, है ना, इट इज द स्ट्रेस कैलकुलेटेड बाय एलिमेंट्री इक्वेशंस, ठीक है। उसमें हमने केटी से मल्टीप्लाई किया तो उनको सिग्मा मैक्स मिल जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा ओ, and this is somewhat related to reduction of the endurance limit due to the presence of the notch, है ना। तो fatigue stress concentration factor is the ratio of the endurance limits, है ना, two endurance limits, one is without notch and one is with notch। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस डिटेल में देखने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे दो कॉलम बना रहे हैं, एक तो केटी के बारे में, एक आपका केएफ के बारे में, ठीक है। तो जो केटी है वो क्या है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल है मींस इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल मटेरियल्स, इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल मटेरियल्स। आइडियल मटेरियल से मेरा मतलब क्या है ना, मटेरियल इज होमोजेनियस, material is homogeneous, material is isotropic, ठीक है।
आइडियल मटेरियल मतलब उसके अंदर ना कोई प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है ना, एक पर्टिकुलर डिफरेंट एक्सेस में, horizontal axis, vertical axis, z axis, all the properties are same, है ना, its density at each and every point is also same. So ideal materials, है ना, so this KT it has been developed for the ideal materials, but in practical life, है ना, none of the material is ideal, it is having some drawbacks. So KF is applicable for actual materials. It is applicable for actual materials. अब actual materials में it also depends on the grain size, है ना, तो grain size में आप देख सकते हैं दो तरह के grains होते हैं, आपने पढ़ा है material science में, coarse and fine, है ना, fine grains and coarse grains. तो endurance limit की जो वैल्यू होगी वो फाइन ग्रेन के लिए ज्यादा होगी या कोर्स ग्रेन के लिए ज्यादा होगी, है ना, ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि फाइन ग्रेन मटेरियल्स के लिए एंड्योरेंस लिमिट कम होती है ना, सो एंड्योरेंस लिमिट इज लेस फॉर द फाइन ग्रेन मटेरियल्स, है ना, और छोटे आइडियल मटेरियल के केस में तो ग्रेन का कोई हम कंसेप्ट ही नहीं दे रहे हैं, एवरीथिंग इज आइडियल, properties are ideal, grain sizes are ideal, everything is theoretical concentration factor. तो थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि ये आइडियल मटेरियल के लिए है और ये एक्चुअल मटेरियल के लिए है, ठीक है। अब एक वर्ड आ रहा है, लास्ट वर्ड है ये, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे आज। तो नोच सेंसिटिविटी, है ना, Q, है ना, Q क्या है, नोच सेंसिटिविटी है। तो मान लीजिए किसी कंपोनेंट में, जैसे अभी मैंने नोच दिखाया था, तो ये V टाइप की नॉच है, ऐसा भी हो सकता है कि नॉच का कुछ अपना रेडियस हो, ऐसा भी हो सकता है दिस नॉच इज हैविंग सम रेडियस, सो इट इज अ नॉच रेडियस, ठीक है। तो इस नॉच की वजह से क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट रिड्यूस हो जाती है ना, नॉच की वजह से। तो आइडियल मटेरियल्स होंगे तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल मटेरियल में नॉच की वजह से एंड्योरेंस लिमिट रिड्यूस होगी। तो डेफिनेशन देखिए, notch sensitivity is defined as the susceptibility of a material to succumb to damaging effects of the stress raising notches. Notches की वजह से क्या होता है, stress raise हो जाता है ना, localization of the stress हो जाता है, stress concentration हो जाता है ना, stress raising notches in fatigue loading. The notch sensitivity factor Q is defined as increase of the actual stress, है ना, actual material पे कौन सा फैक्टर चलता है, KF, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, अभी पहले ही बताया है ना, ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस। तो नॉमिनल स्ट्रेस क्या है हमारा, सिग्मा जीरो, ठीक है। सिग्मा जीरो पर यदि हम KF मल्टीप्लाई करेंगे तो नया स्ट्रेस क्या हो जाएगा, KF इंटू सिग्मा जीरो। देखो पहले स्ट्रेस कितना था, सिग्मा जीरो, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वजह से ये स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, है ना, तो इंक्रीज होने के बाद फाइनल स्ट्रेस कितना हो गया, KF टाइम्स सिग्मा जीरो हो गया ना। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द इंक्रीज, सो KF सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा जीरो, ये लिखा जा सकता है। इसके न्यूमरेटर को देखिए, इंक्रीज ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेस, तो कितना स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, पहले स्ट्रेस सिग्मा जीरो था, बाद में KF टाइम्स सिग्मा जीरो हो गया, सो दिस इज द इंक्रीज इन द स्ट्रेस, है ना, सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर, increase of the theoretical stress over the nominal stress, तो nominal stress सिग्मा जीरो है, theoretical concentration factor KT है, तो पहले स्ट्रेस सिग्मा जीरो है, KT की वजह से KT टाइम्स सिग्मा जीरो हो गया, पहले ये था बाद में ये हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस, सो KT टाइम्स सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा जीरो, दिस इज द चेंज, दिस इज द इंक्रीज इन द theoretical stress over the nominal stress. If I take common sigma zero, so I have KF minus 1 divided by sigma 0 KT minus 1. Sigma 0 cancel out. So finally I have Q equal to KF minus 1 divided by KT minus 1. So this is the formula for the notch sensitivity. Q equal to KF minus 1 divided by KT minus 1. एक बार तो गेट में ये फॉर्मूला ही आ गया था, एक नंबर के क्वेश्चन में, है ना। So Q equal to KF minus 1 divided by KT minus 1. और इसको एक अलग फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, KF equal to 1 plus
2 into kt minus 1. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 into kt minus 1 and this minus 1 when goes to left side it is plus 1. So 1 plus 2 times kt minus 1. This formula we will use during the solution of the numericals. याद रखिएगा इसको kf का formula 1 plus q into kt minus 1. चलिए अब ये है लास्ट टॉपिक कि एंड्योरेंस लिमिट ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से एंड्योरेंस लिमिट रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए एसिड अभी मैंने लास्ट आपको क्या बताया था, एसिड इज द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द स्पेसिमेन, नॉट द प्रोडक्ट, नॉट द कंपोनेंट, इट इज द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द एसिड। तो एसिड के लिए क्या जनरल फॉर्मूला है, 0.5 टाइम्स SUT इन केस ऑफ स्टील। ठीक है, अब इसमें देखिए कई सारे फैक्टरों से इसे मल्टीप्लाई किया गया है। फर्स्ट फैक्टर इज Ka, second is Kb, Kc, Kd. There are 4 factors. So this first factor is the surface finish factor. It is a surface finish factor, Ka. है ना? So during the manufacturing process, we go for different manufacturing process, hot working, cold working, forging. So in the each and every manufacturing process, there is a difference in the surface finish. There is a difference in the surface finish. So that surface finish is also important factor for the endurance limit. So K is the surface finish factor. There, from where we will find this K. We will got this surface finish factor from the design data book. We got this factor from the design data book. So we numerical solve करेंगे, we will solve. Then we will have the procedure how to find K. So in data book we are having so many charts or tables. In data book there will be tables. So in one column there are manufacturing conditions, forged, machined, etc., hot rolled, and for those the value of K will be written in the second column. So from that table we will find the value of K from the machine design data book. Okay. The second factor is Kb. So Kb is a size factor. Kb is a size factor. So size means the size of our specimen is 7.55. So the value of Kb will be 1 for our specimen. यदि हम स्पेसिमेन के लिए एंड्योरेंस लिमिट की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारी Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और जब 7.5 से हमारा डायमीटर ज्यादा होगा शाफ्ट का, तो उस केस में Kb की वैल्यू, और कम होने पर Kb की वैल्यू वो अगेन हम डिजाइन डाटा बुक से फाइंड करेंगे। Kb को भी हम कहां से फाइंड करेंगे, we will find the Kb also from the design data book, है ना। there are certain tables for the Kb according to the diameter of the shaft। तो एक कॉलम में क्या होगा, डायमीटर होगा, दूसरे कॉलम में Kb होगा। डायमीटर की वैल्यू देख करके we can find the value of Kb, है ना। So we are having K from data book, Kb from data book, and Kc is the reliability factor, है ना। Kc is the reliability factor. So reliability is a probability that a particular component will be available for its function, है ना, during its predefined specified period। यही होती है रिलायबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप रिलायबिलिटी फैक्टर बढ़ाते जाएंगे, है ना, मान लीजिए आपको डिजाइन में ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, है ना, कंपोनेंट के फेल नहीं होना चाहिए, यू नीड मोर रिलायबिलिटी, है ना, कंपोनेंट की वर्किंग में यू नीड मोर रिलायबिलिटी। सो इफ योर रिलायबिलिटी इज मोर, योर एंड्योरेंस लिमिट विल बी लेस, है ना, एंड्योरेंस लिमिट विल बी लेस। भाई आप कम एंड्योरेंस लिमिट पर डिजाइन करेंगे, उस केस में आप ज्यादा रिलायबिलिटी देने के लिए आप अपने मटेरियल की एंड्योरेंस लिमिट, मान लीजिए कि उसकी 70 एंड्योरेंस लिमिट है, तो हम 70 की जगह उसे 65 और 60 मान के चलेंगे, जिससे रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रिलायबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारे उसके लिए हम एक रिलायबिलिटी फैक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो 50% रिलायबिलिटी के लिए जो रिलायबिलिटी फैक्टर है Kc, द थर्ड फैक्टर Kc, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। 50% रिलायबिलिटी के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1। अब जैसे जैसे हम 60% रिलायबिलिटी करेंगे
तो इस फैक्टर की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, है ना, पॉइंट में हो जाएगी कुछ 0.95, 0.97 टेबल से मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आप रिलायबिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना, 90% रिलायबिलिटी कर देंगे, 95%, 99.99%, समटाइम्स द रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर 99.99%. In that case, the reliability factor will be different and it will be less than 1. है ना, रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो रिलायबिलिटी फैक्टर रिड्यूस होगा, और रिलायबिलिटी फैक्टर रिड्यूस होगा तो एंड्योरेंस लिमिट रिड्यूस होगी, है ना, और जब एंड्योरेंस लिमिट होगी तभी तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया। So this is the third factor, which is reliability factor. And last one is KD. So this KD is somewhat related to stress concentration. स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने की वजह से भी एंड्योरेंस लिमिट रिड्यूस हो जाती है ना। देखो, एंड्योरेंस लिमिट बहुत सी बातों से रिड्यूस होती है, बहुत सी बातों से रिड्यूस होती है ना। नंबर 1 के की वजह से रिड्यूस होती है। के मतलब सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को आप घटा बढ़ा देंगे, एंड्योरेंस लिमिट घट बढ़ जाएगी। ठीक है, सरफेस फिनिश पर डिपेंड करती है। नंबर 2 केबी साइज पर डिपेंड करती है। शाफ्ट का डायमीटर 7.5 रखोगे, 7.5 से ज्यादा रखोगे, 7.5 से कम रखोगे, एंड्योरेंस लिमिट अप डाउन होगी। रिलायबिलिटी कम ज्यादा करोगे, एंड्योरेंस लिमिट अप डाउन होगी। स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाएगा ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ दी स्ट्रेसेस, ड्यू टू डिसकंटिन्यूटीज, तो एंड्योरेंस लिमिट डाउन होगी, है ना। सो एंड्योरेंस लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इट अफेक्ट्स बाय मेनी फैक्टर्स। It is affected by shape and size of the component also. तो shape and size हमने कौन से फैक्टर में इंक्लूड कर लिया यहाँ पे? We have included shape and size in KB. So this KB is responsible for the shape and size. ये basically size factor है ना, size के लिए responsible है। This is responsible for size. This is responsible for surface finish. This is responsible for reliability. And the fourth factor is responsible for the stress concentration. So what is the stress concentration factor? KF. एक्चुअल मटेरियल की बात हो रही है। एक्चुअल मटेरियल के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है? केएफ। थ्योरेटिकल मटेरियल के लिए क्या है? केटी। ठीक है, तो केडी को हम डिफाइन कर रहे हैं 1/kf, है ना। केएफ की वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 होती है, तो केडी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। केएफ इज ऑलवेज मोर देन 1, सो केडी इज ऑलवेज लेस देन 1। व्हेन केडी इज ऑलवेज लेस देन 1, इट विल रिड्यूस द एंड्योरेंस लेवल। So each and every factor, K, KB, KC, KD, all the 4 factors are reducing the endurance limit, है ना। So that's why these all factors K, KB, KC and KD, है ना, इन चारों को मिलके इनको बोलते हैं डायरेक्टिंग फैक्टर्स, है ना। जब कोई पूछने व्हाट आर डायरेक्टिंग फैक्टर्स, तो डायरेक्टिंग फैक्टर्स यही हैं: सरफेस फिनिश फैक्टर, साइज फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर, मॉडिफाइंग फैक्टर। ठीक है, तो अब देखो इसमें SE क्या है? कंपोनेंट की एंड्योरेंस लिमिट। SE डैश क्या है? स्पेसिमेन की एंड्योरेंस लिमिट। और K, KB, KC, KD ये क्या है? डायरेक्टिंग फैक्टर्स। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? एंड्योरेंस लिमिट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, है ना। जब हमारा क्राइटेरिया एंड्योरेंस लिमिट है, डिजाइन क्राइटेरिया एंड्योरेंस लिमिट है, तो फिर हमें एंड्योरेंस लिमिट कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है K, KB, KC, KD, SE डैश। Yes, so I think it is sufficient input for this information. SC. Now, surface finish factor कहाँ से पता लगेगा? डाटा बुक से पता लगेगा, है ना। डाटा बुक में इस तरह की टेबल होंगी, है ना। तो सरफेस फिनिश में जो है ग्राउंड फिनिश, मशीन, हॉट रोल्ड, एज फोर्स्ड, है ना, इस तरह की जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ए और बी कांस्टेंट होंगे, है ना। ए और बी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। डायरेक्ट टेबल में हो सकता है कि के दिया हो अलग से, एक कॉलम के का भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपको के मिल जाए। अदरवाइज कभी कभी फॉर्मूलाज होते हैं एम्पेरिकल, के इक्वल टू ए इंटू SUT टू द पावर बी। इस तरह के कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला होते हैं जहां पे ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ए और बी की वैल्यू आपको कहां से मिल जाएगी? टेबल से मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या है? 1.58, बी की वैल्यू क्या है? -0.085 इन केस ऑफ ग्राउंड। इन केस ऑफ हॉट रोल्ड द वैल्यूज आर डिफरेंट। A is different, B is different, and SUT is the material property. So you can find from data book if the material is given. So all the 3 things are given, then you can find K. So this is something idea about the how we will find K from the machine design data book, either from the empirical formula or from the direct table. Table में the direct K दिया है, या कभी-कभी ग्राफ्स होते हैं, है ना। ग्राफ्स होते हैं, ऐसे ग्राफ्स होते हैं।
इधर एक तरफ तो उसमें के लिया होता है वाई एक्सिस पर, और इधर आपका एसयूटी चलता है। तो अब आपको एसयूटी तो पता है, तो दिस मच ऑफ एसयूटी है ना। सपोज दिस इज ए ग्राफ फॉर स्टील, दिस इज ए ग्राफ फॉर एल्यूमिनियम, सो यू विल सी द ग्राफ फॉर स्टील, है ना, और इट इज ए ग्राफ फॉर हॉट रोल्ड, इट इज ए ग्राफ फॉर ग्राउंड, है ना। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो जिस चार्ट, जो भी चार्ट रिलेवेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सरफेस फिनिश फैक्टर पता कर सकते हैं। तो डाटा बुक से यूज करने का मेरा मतलब है कई तरीके हो सकते हैं, आइदर फ्रॉम द टेबल और फ्रॉम द चार्ट और फ्रॉम द इंपेरिकल फॉर्मूला और एनी और ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप, किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो जो भी होगा हम यूज करेंगे। साइज फैक्टर, यदि हमारे स्पेसिमेन का साइज 7.5 है तो केबी की वैल्यू 1, यदि 7.5 से 50 के बीच में है देन वैल्यू इज 0.85, 7.5 से कम है 6 हो 5 हो 4 हो इट इज 1, है ना। 7.5 से 50 then it is 0.85, if it is more than 50 then it is 0.75। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है केबी जो साइज फैक्टर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, और जब साइज फैक्टर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब इसकी एंड्योरेंस लिमिट रिड्यूस हो रही है। थर्ड फैक्टर इज रिलायबिलिटी फैक्टर, सो फॉर द 50% रिलायबिलिटी the factor is 1, as you increase the reliability to 90% the reliability factor reduces, and again there is an increment, there is again reduces, for 99.999 the reliability factor is 0.659, है ना। So this chart is given in your data book, everything is given in your data book, just you know how to use them in solving the numericals. So this is modifying factor KD equal to 1 by KF. KF is the fatigue stress concentration factor and KD is the what is the name of the KD? बताइए, modifying factor, है ना। KD is a modifying factor and it is the inverse of the fatigue stress concentration factor। ठीक है, तो ये हमने अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक चीज और आ गई है, एक्साइल लोडिंग। ठीक है, तो देखो ये जो ऐसी है, ये ऐसी क्या है, एंडोरेंस लिमिट, एंडोरेंस लिमिट ऑफ कंपोनेंट, है ना। और इस एंडोरेंस लिमिट के लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, के इंटू के बी इंटू के सी इंटू के डी इंटू एसी डैश। एसी डैश तो स्पेसिमेन की है, ये सारे डायरेक्टिंग फैक्टर हैं, ये ऐसी कंपोनेंट की एंडोरेंस लिमिट है, लेकिन ये एंडोरेंस लिमिट अंडर रिवर्स बेंडिंग सिचुएशन, इट इज द एंडोरेंस लिमिट अंडर रिवर्स बेंडिंग सिचुएशन। ठीक है, if our problem involves axial loading, our problem involved axial loading in place of reverse bending, then our endurance limit will be different. So SEA is the endurance limit in the axial loading, it is written over here, it is axial loading. So endurance limit in axial loading, है ना। यदि आपकी प्रॉब्लम में एक्साइल लोडिंग का केस हो, आपकी लोडिंग कंडीशंस एक्साइल हो, रिवर्स बेंडिंग ना हो, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट जो किए हैं, एसएन डायग्राम जो बनाए हैं, वो हमने किसके बेस पे बनाए हैं, रिवर्स बेंडिंग के बेस पे बनाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम मान लीजिए एक्साइल लोडिंग की है, डिजाइन प्रॉब्लम, तो उस केस में एंड्योरेंस लिमिट अंडर एक्साइल लोडिंग निकालनी होगी। सो एंड्योरेंस लिमिट अंडर एक्साइल लोडिंग इज गिवन बाय 80% ऑफ द एंड्योरेंस लिमिट अंडर रिवर्स बेंडिंग सिचुएशन। तो एक्साइल लोडिंग के केस में एंड्योरेंस लिमिट 20% और रिड्यूस हो जाती है ना, 0.8 ऐसी। नाउ देयर इज ए न्यूमेरिकल, है ना। तो इस न्यूमेरिकल को करके हम, टाइम तो वैसे कम है, चलिए आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए फिलहाल, और नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स, डायरेक्टली वी विल गो टू न्यूमेरिकल। चलिए इस प्रॉब्लम को जरा पढ़ के देखते हैं पहले। A plate made of steel 20 C8, SUT 440 Newton per meter square, so SUT is given, है ना। जब SUT 440 given है तो SE dash कितना हो गया, 0.5 SUT, so it is 0.5 into 440, how much, it is
220 megapascal. So what is AC dash? AC dash is the endurance limit of the specimen in under reverse bending situation. AC dash आपको मिल गया. अब प्रॉब्लम क्या है, प्लेट की है, is hot rolled and normalized. ठीक है, तो ये जो hot rolled है, अब ये आपके काम आएगा क्या निकालने में, KA, that is surface finish factor. क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपको सब कुछ पता लगेगा, ध्यान से देखिएगा. हॉट रोल्ड, तो आप हॉट रोल्ड वाला चार्ट देखेंगे कि ये निकालने के लिए. यदि यहाँ पर मशीन्ड लिखा होगा देन यू विल सी द मशीन वाला चार्ट, फोर्स्ड लिखा होगा देन फोर्स्ड वाला चार्ट, है ना. सो दिस वर्ड इज रिलेटेड टू सरफेस फिनिश फैक्टर, इज शोन इन फिगर, है ना. फिगर भी आगे, इट इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्लीटली रिवर्स्ड एक्साइल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन. चलिए फिगर देख लेते हैं पहले. This is the figure. So this is the plate, and the load is plus minus 30. Load is plus minus 30. अब देखो plus minus 30 का मतलब ये हुआ कि आपका सिग्मा मैक्स जो है वो कितना है, 30 किलो न्यूटन है, और सिग्मा मिन कितना है, माइनस 30 किलो न्यूटन. प्लस 30 और माइनस 30, ये हमारे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन है. ठीक है, तो अब इस केस में सिग्मा मीन कितना हो जाएगा, 30 प्लस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 0. स्ट्रेस एम्पलीट्यूड विल बी 30 माइनस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, इट इज 30. इट इज 30. तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 30 आ रही है, और सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी है, वो भी 30 है ना. ये फोर्स है ना, इट इज दे आर नॉट स्ट्रेसेस. तो अभी इसको सिग्मा एम नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे पीएम. पीएम फॉर मीन फोर्स, इट इज ए मीन फोर्स, है ना. और इसको हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड फोर्स. पीएम एंड पीए, ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट पे ध्यान दीजिए, दे आर नॉट स्ट्रेसेस, है ना. सो दिस इज पी मैक्सिमम एंड इट इज पी मिनिमम, दे आर नॉट सिग्मा. ये भी ध्यान देना है. जब इस 30 को हम एरिया से डिवाइड करेंगे देन वी विल गॉट सिग्मा. तो हर जगह पर इसमें क्या है, एरिया से डिवाइड हो जाएगा तब ये सिग्मा आएगा, लेकिन उस होगा सिग्मा एम 0. ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि प्लेट पर जो लोडिंग है वो एक्स डायरेक्शन में लोडिंग है ना. सो इट इज द केस ऑफ एक्साइल लोडिंग, इट इज द केस ऑफ एक्साइल लोडिंग. तो एक्साइल लोडिंग के केस में आपको क्या है, एंड्योरेंस लिमिट फाइंड करनी होगी. तो क्राइटेरिया क्या डिजाइन का, एंड्योरेंस लिमिट इज द क्राइटेरिया. फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के केस में द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन इज एंड्योरेंस लिमिट, है ना. तो किसी भी तरह से आपको एंड्योरेंस लिमिट फाइंड करनी है. अब एंड्योरेंस लिमिट फाइंड करने के लिए यदि एक्साइल लोडिंग का केस है तो आपको एससीए निकालना है, और एससीए की जो वैल्यू है वो होती है 0.8 टाइम्स एसई. अब एसई क्या है, एसई इज द एंड्योरेंस लिमिट अंडर रिवर्स बेंडिंग, और एससीए इज द एंड्योरेंस लिमिट अंडर एक्साइल लोडिंग. तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो 80% का रिलेशन है. सो इट इज 0.8 टाइम्स एससी. अब आप इसे लिख सकते हैं 0.8 इंटू एससी. एससी कैन बी रिटन एज के, केबी, केसी, केडी एंड एससी डैश, है ना. ये वो फैक्टर आ गए सारे, सरफेस फिनिश, साइज, रिलायबिलिटी, है ना, मॉडिफाइंग फैक्टर. और एससी डैश क्या हो गई, इट इज द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन एंड्योरेंस लिमिट है. एंड्योरेंस लिमिट ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द कंपोनेंट अंडर रिवर्स बेंडिंग, है ना. ये टेस्ट स्पेसिमेन भी अंडर रिवर्स बेंडिंग ही है, ये कंपोनेंट अंडर रिवर्स बेंडिंग, और ये कंपोनेंट अंडर एक्साइल लोडिंग. ठीक है, तो हमारी शुरुआत होती है एससी डैश से. एससी डैश से हम फाइंड करते हैं एससी, और एससी से हम फाइंड करते हैं एससीए. एससीए हम जब भी निकालेंगे जब हमारी प्रॉब्लम एक्साइल लोडिंग से रिलेटेड होगी. यदि एक्साइल लोडिंग से रिलेटेड नहीं है तो फिर हम उस केस में केवल एसई निकालेंगे, है ना, एससीए नहीं निकालेंगे. तो ये प्रॉब्लम एक्साइल लोडिंग की है. तो फिगर्स के बाद यहाँ आ जाते हैं. रिवर्स एक्साइल लोड ऑफ 30 न्यूटन, द नॉट सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ कैन बी टेकन एज 0.8. तो क्यू की वैल्यू जो है वो 0.8 गिवन है, एंड द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी इज 90%, है ना. रिलायबिलिटी इज गिवन 90%. तो चार्ट से 90% के लिए हम रिलायबिलिटी फैक्टर देख लेंगे. साइज फैक्टर इज 0.85, डायरेक्टली दे दिया है, कोई डाटा बुक देखने की जरूरत ही नहीं है. सो केबी इज
0.85 गिवन ऑलरेडी, पहले से ही दिया हुआ है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, है ना, तो इसको तो डिजाइन स्ट्रेस निकालने के लिए यूज कर लेंगे। जैसे हम जब हम स्टैटिक लोडिंग में करते थे तो हम व्हाट वी डू SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते थे, तो हमें डिजाइन स्ट्रेस मिलता था, है ना। तो अब हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया है, एंड्योरेंस लिमिट। तो एंड्योरेंस लिमिट को जब हम फैक्टर ऑफ